Hello students, your next topic is comparative income statement. In the last class, we did the comparative balance sheet and next is comparative income statement. So, in this topic, the income statement gives the results of the operations of a business. The comparative income statement gives an idea of the progress of a business over a period of time. ठीक है, एज यू नो इनकम स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਥਰੂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ So, the changes in absolute data in money values and percentage can be determined to analyze the profitability of the business. ठीक है सेम एज बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ 4 ਕਾਲਮਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਫਰਸਟ 2 ਕਾਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ 2 ਕਾਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ guidelines for interpretation of income statement ठीक है सो याद रखना है ठीक है कि इंटरप्रिटेशन तो बिना कोई भी स्टेटमेंट अगर तुम एनालाइज कर दे हो वो की है किसी काम लेनी है ठीक है सो इंटरप्रिटेशन मस्ट है ठीक है अगर तुम किसी भी स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हो ठीक है चाहे वो बैलेंस शीट है चाहे वो इनकम स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ स्टेटमेंट को इंटरप्रेट ज़रूर करोगे विदाउट इंटरप्रिटेशन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं मनी जाती है ठीक है सो फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट गाइडलाइन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ देखो की देखेंगे आप द इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स शुड बी कंपेयर्ड विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है यू ऑलरेडी नो ठीक है इनकम स्टेटमेंट ਦੇ ਸਾਨੂੰ सेल्स गिवन ਹੁੰਦੀ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ਹੁੰਦਾ है ठीक है सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ गुड सोल्ड दैन की होएगा कंपनी के लिए वैल होएगा अच्छा होएगा गुड होएगा ठीक है सो इसी पॉइंट दे विच तुसी तुहानू पता ही है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रोस प्रॉफिट सो तुसी ग्रोस प्रॉफिट भी की करोगे उस टाइम जज करोगे ठीक है कि ग्रोस प्रॉफिट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज है या डिक्रीज है okay so first guideline for interpretation of income statement to see the sales and cost of goods sold so there must be more increase in sales as compared to cost of goods sold okay second guideline for interpretation of income statement is to analyze should be study of operational profits so operational profits ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਦੇਖੋ gross profit ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ operating expenses less ਕਰੋਗੇ that is your operating profit ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਹੈ ਮੋਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੇਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਸੇਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े इंक्रीज़ होया या डिक्रीज़ होया। तो तुसी इंडिविजुअली सारे खर्चे भी देख सकते हो जो थोड़े ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर दे इंक्रीज़ होया या डिक्रीज़ होया। देयर आर नंबर ऑफ रीजनस टू इंक्रीज़ है ना एक्सपेंसिस। सो मे इंक्रीज़ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ वाइल अदर्स मे गो अप ड्यू टू मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, है ना। अगर एक्सपेंशन करके थोड़े एक्सपेंसिस इंक्रीज़ होया तो चलो ठीक है, बट अगर मैनेजरियल इनएफिशिएंसी करके एक्सपेंसिस इंक्रीज़ होया सो वो गुड नहीं है। सो तुसी की करोगे, प्रीवियस ईयर नू करंट ईयर दे नाल कंपेयर करके देखोगे कि थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की होया है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होया है। पर्टिकुलर तुसी एक्सपेंसिस भी देख सकते हो। सो थर्ड तुसी इनकम स्टेटमेंट जो एनालाइज करोगे, थर्ड चीज़ की देखोगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोनों कित्थों पता लगती है? थ्रू नैट प्रॉफिट। सो तुसी देखोगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नैट प्रॉफिट इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। ओके, सो नैट प्रॉफिट आपां किवें कड्डदे आ? जो भी थोड़े नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आ वो आपां लैस करदे आ, जो भी थोड़ी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है वो ऐड करदे आ काहदे विच? ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे विच। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट च नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस कर दिते जाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नू ऐड कर दिता जाता है। सो वो साडा आ जाता है नैट प्रॉफिट। सो अगर साडा नैट प्रॉफिट इंक्रीज़ होया एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इट मीनस साडी कंपनी ने प्रोग्रेस की है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी साडी की है, गुड है। ओके, सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस थोड़े की होंगे जिवें इंटरस्ट पेड, लॉसिस फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, रिटर्न ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसिस, पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी साढ़े बहुत सारिया होंदियां, ठीक है, वो थोनों ऑलरेडी क्वेश्चन दे विच गिवन होंदियां। सो तुसी जिवें इनकम स्टेटमेंट बनाते हो उवें तुसी की है क्वेश्चन नू पहला सॉल्व आउट करोगे, दैन तुसी उसनू एनालाइज करोगे। सो लास्ट दे विच तुसी इंटरप्रिटेशन यही दोगे कि हाँ जी थोड़ी इनकम स्टेटमेंट आफ्टर दैट इंटरप्रिटेशन की शो करती है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। सो तुसी दसोगे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज़ गुड। ओके, अगर साड़ी जो है प्लस पॉइंट्स शो होंगे, अगर नहीं दैन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट गुड। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन। लेट्स सी दिस इलस्ट्रेशन। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ जावा लिमिटेड। Okay, so 2 years on given है, previous year and current year 2010 and 11. So sales on given है 120% of cost of goods sold. Cost of goods sold on given है 20 lakh दा 120% थोड़ी sales है। Next 2011 का डाटा given है 150% of cost of goods sold means थोड़ी sales, 25 lakh थोड़ी cost of goods sold given है, इधर 150% sales है। दैन इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप किवें निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आएगा उसका 10% थोड़ा की है इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस। दैन इनकम टैक्स थोड़ा कितना है? 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो पहला क्वेश्चन रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, दैन तुसी की करोगे उन्होंने सॉल्व करोगे। सो दिस इज़ योर फॉर्मेट स्पेसिमेन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ जावा लिमिटेड। Then to see particulars, previous year, current year, change, increase or decrease, then percentages. Okay, so firstly तुसी की है, अगर एवें तो दिता होया डाटा प्रॉपर, अगर अरेंज नहीं है डाटा, ठीक है, दैन तुसी उन्होंने अरेंज करोगे इनकम स्टेटमेंट जिवें बनाते हो, ऑलरेडी तुहानूं पता है। सो सेल्स सब तो पहला सेल्स लई जाती है, उहदे विचों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लैस की जाती है, दैन साडा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट से जो आप इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस लैस करते वो साडा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दैन जो आप टैक्स लैस करते हैं दैन साडा आ जाता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम इतने सानू ऑपरेटिंग जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं गिवन है, सो आप नहीं लवांगे। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुसी पहला की करोगे? स्टेटमेंट बनाओगे, दैन तुसी डाटा पुट करोगे। देखो 20 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, उसका 120% आता है 24 लाख, ठीक है। सेल्स निकालोगे 2010 दी, दैन 25 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, सेल्स आप निकालेंगे 150%, कितनी आ गया है? 37,50,000। ओके, दैन आप देखेंगे कि ये सेल्स विच की हो रहा? इनक्रीज़ हो रहा। सो कितना इनक्रीज़ हो रहा? 13,50,000। सो ऑलरेडी यू नो परसेंटेजिस किवें निकालते हैं? जो भी साडा चेंज आया है उन्होंने डिवाइड करते आपां बेस ईयर दे नाल। So 13,50,000 divided by 24 lakh into 100,
दैट इज़ 56.25% ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ। ਦੈਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁਡਸ ਸੋल्ड देखो सिर्फ 5 लाख इंक्रीज़ हुई है। सो एज़ कम्पेयर टू सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स और लैस इंक्रीज़ हुई है। सो कंपनी लिए नाल दी नाल तुसी इंटरप्रेट भी करते जाओगे। सो दैट इज़ गुड। सो तुसी इहदा भी चेंज परसेंटेज निकालोगे। 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 25%। दैन तुसी इन्हां दोनों नूं माइनस कर दोगे, मीनस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। 4 लाख आ रहा माइनस करके, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 12,50,000। ये भी इंक्रीज़ होया थोड़ा 8,50,000। परसेंटेज निकालोगे 8,50,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100। सो नेक्स्ट इंटर एक्सपेंसिस तुहानूं गिवन है कि 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना 4 लाख इंटू 10% कितना हो गया इहदा 40,000। इहदा 10% कितना हो गया 1,25,000। ऑब्वियस है, इहदा भी चेंज निकालोगे। दैन इनू क्या है इहदे नाल डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे कितनी परसेंट चेंज आया। दैन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, लेस कर दोगे 3,60,000, 11,25,000 माइनस करके कितना आ गया, कितना इंक्रीज आ रहा 7,65,000। सो फिर की करोगे तुसी इनो ਇਹਦਾ भी चेंज निकालोगे डिवाइड करके। ओके, द नेक्स्ट लास्ट इज़ लास्ट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ टैक्स ਲੈਸ कर ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਟ प्रॉफिट। सो टैक्स ऑलरेडी गिवन है 50% ऑफ द बिफोर टैक्स ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ प्रॉफिट है ਉਹਦਾ 50% है। 3,60,000 ਦਾ 50% ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 1,80,000। 11,25,000 ਦਾ 50% ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ 5,62,500। ओके, सो ये भी सारा इंक्रीज़ हो रहा तुसी देख सकते हो। ओके, जिन्ना भी चेंज आया है डिक्रीज़ या इंक्रीज़ उन्होंने डिवाइड किया जाता है बेस ईयर के नाल इंटू 100, दैट इज़ 12,112.5। ओके, दैन तुसी जो टैक्स लैस कर दोगे दैट इज़ योर नैट प्रॉफिट। नैट प्रॉफिट जो है साडा की है तुसी देख सकते हो इंक्रीज़ हो रहा काफ़ी ज़्यादा, डबल ही कह रहे हो, डबल तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा, दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। ओके, सो इंटरप्रेट भी नाल दी नाल करते जाओगे। दिस इज़ योर question for short note। okay, so let's do one question from exercise also। comparative income statement का कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं from exercise। let's see any question। this is one of the question of comparative income statement। देखो इस क्वेश्चन से थानू गिवन है इनकम स्टेटमेंट 31 December 2010 and 11। they said rearrange them in a comparative form and make comments, means interpret करो। so you have to rearrange डाटा सारा थानू गिवन है। सेल देखो एक तरह थानू अकाउंट ही गिवन है, इनकम स्टेटमेंट ही गिवन है, सेल्स गिवन है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, द बोथ आर योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बोथ आर योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एट द एंड आप करते हैं ना, ठीक है। दैन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग, बोथ आर योर indirect expenses, operating expenses। okay, then interest paid, loss on sale of machinery, both are your non operating expenses। okay, then income statement income tax given है। okay, the net profit भी already given है, ठीक है। जो तुसी statement बनाओगे तुसी net profit अपना की कर सकते हो, देख सकते हो। okay, so let's do this question। you can see the question। this is your question। comparative इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, एनालाइज करोगे स्टेटमेंट नू तुसी, और स्पैसिफिकली रीअरेंज, समटाइम्स अरेंज्ड डाटा गिवन हुंदा है। सो तुसी हुण की करोगे, इत्थे अरेंज करोगे। देखो आए थोड़ा यही सेम क्वेश्चन जो है कॉपी ते पुट किया होया, मैं ये आइटम्स पुट कीतियां हुई। देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 December, जो भी थोड़ा ईयर गिवन है 11। ओके, सो पर्टिकुलर्स ऑब्वियस है मैंने अरेंज की है, ठीक है। सो सब तो पहला सेल्स लेंदे है 10 दी थोड़ा बुक दे विच गिवन है 15,25,000, 11 दी थोड़ा गिवन है 17 लाख। ओके, दैन चेंज इंक्रीज और डिक्रीज गिवन है। सो इत्थे ऑलरेडी सीन देखो इंक्रीज हो रहा
सो किन्ने परसेंट 11.48%। किवें निकालते हैं ऑलरेडी यू नो, जिन्ना भी इंक्रीज डिक्रीज होया है डिवाइड बाय दिस योर बेस ईयर या फिर प्रीवियस ईयर इंटू 100। ओके दैन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी गिवन है बुक दे विच, वो ले लिया। ओके दैन ਉਹਦਾ इंक्रीज हो रही 50,000, सो ਉਹਦੀ परसेंटेज निकाली है। दैन जो तुम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे दैट इज़ योर ग्रोस प्रॉफिट। ओके ग्रोस प्रॉफिट साਡਾ इंक्रीज हो रहा कि 1,25,000, 1,25,000 डिवाइड बाय 6,25,000 इंटू 100 दैट इज़ 20%, 20% इंक्रीज हो रहा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। ਸੋ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਬਲ इंक्रीज हो रहा, सो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। ओके सो ग्रॉस प्रॉफिट भी सारा इंक्रीज हो रहा, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर कंपनी। ओके सो नैक्सट इज़ योर जो तुसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लोगे लैस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। देखो डिफरेंट देखो एड ऑन करके नहीं लिखोगे, तुसी अलग अलग लिखोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, बिकॉज इंडिविजुअल एक्सपेंसिस भी आप जज कर सकते हैं कि हाँ जी किहड़े एक्सपेंसिस साढ़े ज़्यादा होए हैं किहड़े घट होए हैं। ओके सो तुहानूं दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस एंड सेलिंग एक्सपेंसिस। ओके सो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस जो है थोड़ा 93,250 दिते हुए, सो इंक्रीज होया है 2,730, सो 2.9% का जो है इंक्रीज आया। सैलिंग एक्सपेंसिस भी थोड़ी इंक्रीज होया है, ठीक है। सो ये भी देखो 19,000 का चेंज आया है, 10% इंक्रीज होया है। सो जो तुम ग्रॉस प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस कर दोगे ऑलरेडी आप किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा, दिस इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑलरेडी देख रहे हो तुम 1,03,270 इंक्रीज हो रहा 30%। ओके तुम टोटल एक्सपेंसिस भी कढ़ सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस किन्नी टोटल होया वो भी कढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल जिन्ने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस होए 1 - 2 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके दैन तुम लैस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस। ओके तुसी अगे नैट प्रॉफिट कढ़ना है ना, जिन्ने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है वो लैस कर दोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है वो ऐड कर दोगे। ओके सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ऑन 2 गिवन सी, मैं क्वेश्चन के तुहानूं दस्सिया सी इंटरस्ट पेड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके सो ये देखो इंक्रीज हो रहा इंटरस्ट थोड़ा, सॉरी 8,000 तो 7,000 डिक्रीज होया, सो नैगेटिव के विच आएगा। इवें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है ये लैस होया नैगेटिव, जो भी लैस हो रहा डिक्रीज हो रहा उन्होंने आप ब्रैकेट्स के शो करांगे, सेम एज परसेंटेज भी ब्रैकेट शो करांगे। ओके दैन टोटल तुसी निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस करके टोटल निकाल सकते हो। अगे तुसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड कर दोगे, सो इनकम्स जो है देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिक्रीज हो रहा नैगेटिव ब्रैकेट्स शो करोगे, बट थोड़ा प्रॉफिट की हो रहा इंक्रीज हो रहा, दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। ओके सो नैक्सट तुसी की करोगे जिन्ने भी थोड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस लैस करके नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके ये दोनों, ठीक है। फिर थोड़ा आ रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग 1,06,670, सो 130.9% ये इंक्रीज हो रहा। ओके सो तुसी देख सकते हो। नैक्सट इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑलरेडी थोड़ा गिवन है क्वेश्चन के लिख लोगे एज इट इज़, दैन तुसी जो टैक्स लैस कर दोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चो दैट इज़ योर नैट प्रॉफिट। सो नैट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग 9.11%, ठीक है। एवें तुसी सारा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दैन तुसी इस इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करके, ठीक है, फिर तुसी उन्होंने इंटरप्रेट करोगे सेम एज जिमें थोड़ा गाइडलाइनस दसिया गया सी। सो तुसी देख सकते हो मैंने लिखा है द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट गिवन अबव रिवील्स दैट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ 11.48%, you can see, while the cost of goods sold has increased by 5.5% only, okay, thereby resulting in इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। सेम जो मैं थोड़ा पहले दसिया सी, ठीक है। सेल्स डबल जो है इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 20% ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होया है। पहले एवें तुसी सारी इंटरप्रिटेशन करोगे। दैन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस आर ऑल्सो इंक्रीज बाय 7.67%, ठीक है। थोड़े ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस भी इंक्रीज हुए हैं, देख सकते हो। मैंने टोटल एक्सपेंसिस कढ़े सी ना, टोटल
जिन्ने एक्सपेंसिस होए ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस ये 7.67 इंक्रीज़ होए. दैन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीज 30%. ठीक है, विच इज़ एफिशिएंट टू कवरिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस. ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट साडा इंक्रीज होया, सो ये साढ़े खर्चे ये पूरे हो जाएंगे. सो इनकम टैक्स जो है वो घट गया है. ठीक है, इनकम टैक्स तुसी देख सकते हो 85,000. ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 9.1%. सो एट द एंड तुसी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे. ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज सैटिस्फैक्टरीली. ठीक है, सैटिस्फैक्टरी बिकॉज बोथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस डिक्रीज. ठीक है, जो जो डिक्रीज होया वो लिख दोगे, जो जो इंक्रीज होया वो लिख दोगे. सो इंक्रीज इन सेल्स इज मोर दैन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इज सैटिस्फैक्टरी. ठीक है, एवं तुसी लिखोगे. So this is your question of comparative income statement. Okay. Next is after comparative income statement, let's do next method of financial statement analysis, trend analysis. So this is also important method of analysis. Okay, so trend analysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ upward movement आई है, downward movement आई, means direction of ठीक है that particular thing. So this method determines the direction upwards or downwards and involves the computation of the percentage relationship that each statement item bears to the same item in base year. The information for a number of year is taken up and one year, generally the first year, is taken as a base year. ठीक है, so trend analysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ information given ਹੋਏਗੀ, ਉਸ information ਨੂੰ ਆਪਾਂ analyze ਕਰਾਂਗੇ. ठीक है, जिन्ने भी ईयर्स ਦੀ given ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ की मूवमेंट है, डायरेक्शन की है, अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है. सो कोई भी साल जो है आप बेस ईयर ले सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर ही बेस ईयर लिया जाता है. सो देखो एवं जिमें थोड़ा आ इनफॉर्मेशन गिवन है, देखो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, दिस इज़ द इनफॉर्मेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, सो कहते सेल्स एवं जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो रही. देखो तुम देख सकते हो इन्होंने जो फर्स्ट ईयर है वो बेस लिया है. बेस ईयर हमेशा 100 लिया जाता है. बेस ईयर हमेशा 100 लिया जाता है, 100. सो नैक्सट ईयर थोड़ी सेल हुई है 120, 110, 125, 135, 140. सो इनू तुम फिर की करोगे, इंटरप्रेट करोगे. हुण तुम देख सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन ही है. ठीक है, बट देखो 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ डिक्रीज़ हुई है. बाकी सारा ठीक है, बाकी सारे ਵਿੱਚ ਕੀ है, अपवर्ड मूवमेंट ही है. ठीक है, एवं तुम जज करोगे. देखो प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेंड्स. ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ट्रेंड किमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन वगैरह किमें देख सकते हो. 1 ईयर मस्ट बी टेकन एज अ बेस ईयर. सो किसी भी साल में तुसी बेस ईयर लोगे, जनरली फर्स्ट ईयर या लास्ट ईयर में बेस ईयर लिया जाता है. और जोड़ा भी तुसी बेस ईयर लै रहे हो वो फिगर में तुसी 100 शो करोगे. ठीक है, फिर बेस ईयर के अकॉर्डिंग तुसी ट्रेंड परसेंटेजिस कैलकुलेट करोगे. ओके, सो दैन तुसी की करोगे, ट्रेंड एनालिसिस नू इंटरप्रेट करोगे. ठीक है, सो द मेयर इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेंड परसेंटेजिस में गिव मिसलीडिंग रिजल्ट. तुसी सीधा ही देखना कि हाँ जी बाल इंक्रीज हो रहा है. सो ये मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, सो इफ दिस इंक्रीज इन करंट एसेट्स इज अकम्पेनिड बाय एन इक्वलेंट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज दैन दिस इंक्रीज विल बी अनसैटिस्फैक्टरी. है ना, देखो अगर थोड़ी करंट एसेट्स भी वधिया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही थोड़ियाँ करंट लाइबिलिटीज़ भी वध गई. सो वो की अनसैटिस्फैक्टरी ही होएगा. सो प्रॉपरली तुसी जज करना है. ठीक है, सो बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल पीरियड होना चाहिए थोड़ा. ठीक है, सो बेस पीरियड जो की है थोड़ा केयरफुली सिलेक्ट करना है. तुसी मोस्टली फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर ही किया जाता है. सो ज़्यादा स्मॉल फिगर नहीं होनी चाहिए बेस पीरियड की. ठीक है, प्रॉपरली आप उन्होंने सिलेक्ट करना है. सो देखो थोड़ी बुक के जो है फर्स्ट दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डाटा थोनों देखो
2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੇਲਸ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ 3 ਥਿੰਗਸ ਗਿਵਨ, ਸੇਲਸ, ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ। ਈਅਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮੈਟ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਸੇਲਸ, ਸਟਾਕ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ। ਅਮਾਊਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਮਾਊਂਟਸ ਲਿਖ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, 1881, 2340, ਠੀਕ ਹੈ, 2655, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਦੇਖੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ, ਬੇਸ ਈਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 100 ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, 100 ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੇਸ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 2340, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ, ਓਕੇ। 2340 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਬੇਸ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, 1881 ਇੰਟੂ 100, ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 124, ਓਕੇ। ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਇੰਟੂ 100। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ 2006 ਡਾਟਾ, 2655, ਬੇਸ ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2004 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ ਬੇਸ, 1881 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1881 ਇੰਟੂ 100, that is 141। सारा एम कर दोगे। 3021 डिवाइड बाई 1881 इंटू 100, 3768 डिवाइड बाई 1881 इंटू 100, ओके। सेम एज स्टॉक, ठीक है। 709 दैट इज़ योर 2004 बेस ईयर लोगे 100, दैन 781 डिवाइड बाई 709 इंटू 100, परसेंटेज निकाल लोगे। सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 321 बेस ले लिया, ठीक है। दैन 435 डिवाइड बाय 321 इंटू 100, 136। ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜਿਸ ਨਿਕਾਲੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਅਮਾਊਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ, ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ 1881, ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ 709, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ 321, ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ठीक है। सो इंटरप्रेटेशन वैसे भी तुसी देख के भी कर सकते हो, खुद करोगे, ठीक है। सो फिगर तुसी सारियां फिगर्स देखोगे, ठीक है। तुसी देख सकते हो कि सेल्स जो है 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेंड परसेंटेज 100 सी, और देखो लास्ट ईयर 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ परसेंटेज कितनी आ गई 200। तुसी देख सकते हो कि 100 तो सीधा 200, सो सेल्स की हुई थोड़ी डबल हो गई है, दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। इवें तुसी स्टॉक देख सकते हो 100 सी, ये थोड़ी हो गई है 162, ठीक है। इवें प्रॉफिट्स देख सकते हो, प्रॉफिट कितना है 100, इत्थे कितना हो गया थोड़ा 209, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 209, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो डबल, सो प्रॉफिट भी थोड़ा डबल होया, दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी, ओके। सो एवें तुसी इंटरप्रेट करते जाओगे, ठीक है। तुसी पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सेल्स हैव कंटिन्यूसली इंक्रीज इन ऑल द ईयर अप टू 2008, सेल्स इंक्रीज हो रही, फिगर ऑफ स्टॉक ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज़ सब्सटेंशियली इंक्रीज, डबल हो गया है, मोर दैन डबल, है ना, इन 5 years ऑल्सो, ठीक है। सो द एक्सपेंशन ऑफ द फर्म इज़ गुड एंड इट हैज़ डबल इट्स सेल्स and profits in just 5-year time. The profits have increased more than sales, which shows that there is a proper control over cost of goods sold. So overall performance of the concern is good, okay. So overall performance of the concern is good. This is your trend analysis, second method of financial statement analysis, most important question, okay. You can understand this, you can see also, okay. See, okay. So interpretation is must with all the questions, okay. Whatever you analyze, okay, you will give interpretation also with that question, okay. So this is your today topic, okay. Thank you class.